Hi everyone, I'm Tanya. Welcome to my channel. First of all, मैं आपको सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी. Thank you so much for your overwhelming response and the wishes that have been pouring in. I'm really thankful. All your comments are really inspiring and motivating. So thank you for your support. And बहुत लोगों ने comments में request किया था कि that they want to know RBI Grade B strategy from scratch. Hence I have decided that मैं एक series of videos करने वाली हूँ about how I managed my RBI Grade B preparation as a working candidate and क्या क्या हम phases involved हैं, कैसे कैसे हम each phase के each aspect को tackle कर सकते हैं. Now this is episode 0 of that series. यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा प्री एग्जाम बातें करने वाले हैं एंड दिस सेट्स द ग्राउंड फॉर आवर एंटायर सीरीज, अपकमिंग सीरीज. Now, in today's episode, we'll be discussing some major aspects. First of all, I will tell you about my strategy and my journey. Now, my journey is keeping in mind my strengths, my weaknesses, and my background. I'm telling you all this जिससे कि आपको पता हो कि आपको कहाँ पे कौन-कौन से aspects थोड़े customize करने हैं अपने लिए. Then we will see how much time is ideally required for this exam. Be it a beginner, be it somebody who is a UPSC candidate, be it a non-commerce or commerce student, everything. So we will discuss that. Then we will see something called the pre-exam or pre-notification preparation. ये आप सबके लिए homework होने वाला है, where we will discuss some aspects जो आपको पहले से तैयार करके रखने हैं before even the notification arrives. And then we will see कि ultimately ये series किस किस को help करने वाली है, what kind of aspirants. And in the end, I will give you a brief outline of the videos that I have planned in the series, जिसके through हम सारे aspects को कैसे कैसे cover करने वाले हैं and what all you can expect from the series. So I think let's start without wasting any time. So first of all, about myself and my journey. I am 24 years old. I am a commerce graduate from Shriram College of Commerce, New Delhi, and I'm also awaiting my UPSC 2020 interview result. So I'm giving you all this because that sets the ground कि मेरी strengths और weaknesses इस exam में particularly क्या रही हैं. First of all, पहले एक timeline देख लेते हैं. जो RBI की notification थी इस बार RBI 2021 की, it came somewhere around January 26 and January 17th को मेरे UPSC means खत्म हुए थे. So basically January 26 के around notification आई थी and phase 1 होने वाला था March 6 को and phase 2 was scheduled to happen on April 1. So basically क्या है कि since I'm a working candidate, मैं already 15 days की छुट्टी पे थी because of my UPSC mains and I was going to join back my office on 20th January. Naturally join करते ही मेरे पे काफ़ी सारा workload था, काफ़ी सारी pending चीज़ें थी and फिर notification आ गया 26 January को. So I barely had about 30 days to prepare for phase 1 and another 30 days for phase 2. मैं ज़्यादा hopeful नहीं थी but I thought कि exam तो देना ही है. So I filled in the form. So this is the broad notification timeline. Now let me walk you through some of my strengths personally which helped me in this exam. First of all, the most important is I have a background in commerce. Now this is something you need to keep in mind क्योंकि मैंने all through 11th 12th college and even my optional was commerce and accountancy for UPSC. तो कॉमर्स से मेरी एक फेयर अंडरस्टैंडिंग है. आई वॉज कंफर्टेबल विद सब्जेक्ट्स लाइक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट टू सर्टेन एक्सटेंट. वो मुझे इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगे थे. सेकेंड थिंग दैट वर्कड इन माई फेवर वॉज आई एम अ UPSC एस्पिरेंट. तो इसीलिए मेरे लिए जो दूसरा पेपर होता है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज वॉज नॉट समथिंग वेरी न्यू. I knew the basics, I knew the drill. Third was descriptive, of course. So this was one very big change that happened this year in the RBI Grade B examination. पहले जो RBI Grade B के phase 2 में पेपर 1 to 3 हुआ करते थे उसमें से 2 पेपर ऑब्जेक्टिव रहते थे, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स के. Now surprisingly this time they changed the pattern to 50% descriptive and वो भी again my UPSC preparation had a big role to play. मैंने just अपने मेंस लिखे थे, so I fairly had an idea कि कैसे आंसर्स को अप्रोच करना है, कैसे एनालिटिकल माइंड अप्लाई करना है, कैसे उनको आंसर देना है. So that is another thing that worked in my favor. And the fourth thing that worked in my favor was कि since I have certain professional and corporate exposure, I am a little confident about giving interviews. I know how to interact with people and people reading skills थोड़ी बहुत develop हो चुकी हैं अभी तक. So I was fairly confident about my interview. And interview के marks भी इस बार RBI में बढ़ा दिए गए थे 50 to 75.
So this is roughly the strengths or the things that were advantages to me personally during this year's RBI Grade B examination. Now let me tell you some of my weaknesses or shortcomings. सबसे पहली बात, I was not at all confident with quant reasoning and English. So आई थिंक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को यहाँ पर फ़ायदा हो जाता है, बट मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से थी एंड इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स लिखने का आइडिया नहीं था. सो आई वॉज रियली स्कैर्ड अबाउट क्वांट रीजनिंग इंग्लिश एंड जब मैंने 2019 में पहला अटैम्प्ट दिया था तब मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की थी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की, क्योंकि मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि मैं ये सारी चीज़ें, वो भी सेक्शनल कट ऑफ एंड सेक्शनल टाइमिंग के साथ कैसे मैनेज कर पाऊंगी. सो दिस इज़ वन वेरी बिग वीकनेस दैट आई हैड, एंड वही मुझे इस बार भी काफ़ी डर लग रहा था कि एक महीने के टाइम में मैं क्वांट रीजनिंग इंग्लिश कैसे प्रैक्टिस करूँगी. बट आई विल डिस्कस इन सब्सिक्वेंट वीडियोज़ जो आगे प्लान हैं कि कैसे हम उनको अलग अलग टैकल कर सकते हैं, कैसे मैंने उनको पर्सनली टैकल किया है. सेकेंड इशू विद मी इज़ आई एम वेरी बैड एट मेमोराइजिंग फैक्ट्स. सो इस एग्ज़ाम में बोला जाता है कि फेज़ 2 के लिए स्पेशली पीपल हैव टू रीड PIB एंड ऑल द करंट अफेयर्स, एंड बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है अबाउट दीज फैक्चुअल एस्पेक्ट्स. मेरे साथ दिक्कत ये थी कि आई जस्ट कांट इवन इफ आई ट्राई टू. सो आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस बिकॉज क्या होता है कि समटाइम्स वी आर जस्ट रनिंग बिहाइंड आवर वीकनेसेस सो मच दैट वी फॉरगेट टू टेक लेवरेज ऑफ आवर स्ट्रेंथ्स. सो मैंने यही किया, आई ग्रैब्ड ऑल माई स्ट्रेंथ्स एंड आई मैक्सिमाइज माई स्कोर देयर एंड आई लेट गो ऑफ माई वीकनेसेस कि जो नहीं हो रहा है उसके पीछे मैं नहीं भागूंगी. आई विल रादर स्मार्टली डू वॉट माई स्ट्रेंथ एरियाज आर एंड वहाँ पर मैं बेटर करने की कोशिश करूँगी, थोड़ा अपना ब्रेन लगा के एंड थोड़ा स्मार्टली करके, रादर देन जस्ट रोट लर्निंग एंड रादर देन डूइंग थिंग्स विच आर नॉट वर्किंग इन माई फेवर. सो आई हैड गिवन अप ऑन थिंग्स लाइक PIB एंड एवरीथिंग. वो मैं नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने नहीं किया था. सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. सो नाउ दैट आई हैव टोल्ड यू माई स्ट्रेंथ्स एंड माई वीकनेसेस, आई थिंक ये आपको हेल्प करेगा ओवरऑल एक अपनी प्रोफाइल डिज़ाइन करने में. सो वट एवर स्ट्रैटेजी आई विल बी टेलिंग यू, I will try to customize it as per the needs of different aspirants. But आप भी अपनी एक प्रोफाइल डिज़ाइन कर सकते हैं. आपको पता होगा कि आपके स्ट्रेंथ एरियाज ये हैं और आपके वीकनेस एरियाज ये हैं. इससे क्या होगा, यू विल हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ योर सेल्फ बिफोर द एग्जाम एंड यू कैन अप्रोच दिस एग्जाम मोर कॉन्फिडेंटली एंड विद मोर प्लानिंग. सो ये है अबाउट माई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, हाउ मच टाइम इज आइडियली रिक्वायर्ड टू एस दिस एग्जाम. तो जैसे मैंने आपको बताया, मैंने इस बार तैयारी आफ्टर नोटिफिकेशन की थी बिकॉज आई वॉज रियली बिजी टिल 26 जनवरी. एंड उसके बाद जब मैंने 15 दिन के बाद ज्वाइन किया था ऑफिस आफ्टर माई मेंस, तो ऑलरेडी मुझ पर काफ़ी वर्कलोड था एंड मुझे रफली रोज़ के आप लगा लीजिए 2 से 3 घंटे और वीकेंड्स में जो भी मिले थे जब मैं उनको टाइम दे पाती थी अपनी RBI प्रिपरेशन को. एंड आई रफली हैड अ मंथ टू फेज़ 1. सो दैट वॉज माई that was the paucity of time. That was one very big disadvantage which was there with me at this time. But since I told you my strengths and my background, that really helped me to know my strength areas and work on them smartly. तो ये मेरे फेवर में काम किया था. But I feel that one can comfortably do RBI after the notification. अगर आपको प्रोवाइडेड थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द एग्ज़ाम है, अगर आपने बेसिक बुक्स घुमाई हुई हैं, अगर आपको आइडिया है कि आपने थोड़ी बहुत प्रेप कर ली है, तो आई थिंक आफ्टर नोटिफिकेशन आप बहुत ईजीली सबको रिवाइज कर सकते हैं, सब चीज़ पे वर्क कर सकते हैं एंड क्रैक कर सकते हैं. आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप 1 साल पूरा लगाएं इस प्रेपरेशन पे. आई थिंक बहुत कंफर्टेबली आप कर पाएंगे. सेकेंडली, पीपल समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि हम कोशिश करते हैं कि सब हम ही खुद कर लें. जैसे हम कई बार अपने जो एबिलिटीज़ हैं उनको ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कि यार मैं स्क्रैच से नोट्स भी बना लूँगी और मैं उनको रिवाइज भी 5 बार कर लूँगी और मैं अपना जॉब भी कर लूँगी साथ में और UPSC प्रेप भी कर लूँगी. सो आई डिडंट डू दैट. आई ऑनेस्टली एम अ पर्सन, आई बिलीव इन आउटसोर्सिंग वट एवर वर्क आई कैन, जितना हो सकता है. पढ़ाई तो मैं नहीं आउटसोर्स कर सकती, वो तो मुझे खुद ही करनी पड़ेगी. बट जितना भी मैं मटेरियल आउटसोर्स कर सकती थी, जैसे सो कॉल्ड जो हम कोचिंग्स या फिर इंस्टीट्यूशन से मटेरियल ले लेते हैं, आई बिलीव इन आउटसोर्सिंग दैट. सो मैंने वो आउटसोर्स कर दिया था. So if one outsource his or her preparation थोड़ा बहुत to people who are doing it more smartly than you and people who have more experts than you, why not? And उससे I think you can subsequently reduce the timing जो आपको इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए लगेगी. Then the second category of students is जो entirely self study से कर रहे हैं. This exam is absolutely doable with self study. Even if you're doing self study, I think आपको
100 to 120 डेज, दैट इज़ रफ विंडो, अबाउट 3 to 4 मंथ से ज़्यादा नहीं लगेगा पूरी प्रेपरेशन स्क्रैच से करने में। बाय स्क्रैच आई मीन कि खुद आप बेसिक बुक्स पढ़ रहे हैं, खुद उनके नोट्स बना रहे हैं, खुद उनको रिवाइज कर रहे हैं, सब कुछ खुद से कर रहे हैं। इट इज़ वेरी मच डूएबल, ऐसा नहीं है कि आप खुद से नहीं कर सकते हैं। एंड इन दी अपकमिंग वीडियोज़ आई विल कीप शेयरिंग कि जो मुझे लगता है सेल्फ स्टडी के लिए टिप्स ज़रूरी हैं इस एग्जाम में, बट ड्यू टू पॉसिटिव टाइम आई कुड नॉट डू दैट। सो यू हैव द ऑप्शन, जो भी आपको चूज़ करना है, यू आर ऑल वेलकम। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, द प्री एग्जाम प्रेपरेशन, जो आपका होमवर्क है। सो आई बिलीव दैट अभी नोटिफिकेशन आने में टाइम है आरबीआई की, एंड ये बहुत अच्छा टाइम है कि अभी अभी रिजल्ट आया है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि 3-4 महीने हमारे पास हैं बिफोर द नेक्स्ट नोटिफिकेशन इज आउट। सो वी हैव टू यूज दिस टाइम वेरी इफेक्टिवली। इफेक्टिवली यूज कैसे करना है कि देर आर सर्टन पैरामीटर्स वेर यू शुड बी थरो अबाउट द एग्जाम बिफोर द नोटिफिकेशन अराइव्स, क्योंकि बाद में ये सब करने का इतना टाइम होगा नहीं, बाद में सब कुछ काफ़ी ज़्यादा मिशन मोड में हो जाता है। So the first and the most important pre-exam preparation that you must do is understand the exam. So कोई भी आपको बता देगा, कोई कोचिंग वाले आपको इंस्ट्रक्ट कर देंगे कि एग्जाम ऐसे ऐसे होता है, बहुत अच्छी बात है, बट आई बिलीव दैट अपनी थोड़ी बहुत रिसर्च इंसान को खुद कर लेनी चाहिए। एंड वी आर लिविंग इन सच एन एरा कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है। गो टू कोरा, गो टू यूट्यूब, फाइंड पीपल हु आर टेलिंग यू फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, सर्च अबाउट द एग्जाम, नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए, सिलेबस को देखिए, अंडरस्टैंड द एग्जाम, क्योंकि कोई और आपको इतने अच्छे से नहीं बता पाएगा जब तक आप खुद नहीं देखेंगे। तो अपनी रिसर्च अबाउट द एग्जाम करके रखिए, एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम में क्या क्या फेजेस हैं, ये सब यू नीड टू नो। द सेकेंड इज ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडिंग योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। जस्ट हाउ आई प्रेजेंटेड माई प्रोफाइल बिफोर यू, आपको भी अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस सबको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर चीज़ में ही स्ट्रांग हैं, फिर आप हर चीज़ में ही वीक हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, engineers would be very comfortable with QRE, quant reasoning English. For a commerce background student, I think a commerce background student will be a little comfortable with finance and management. या फिर कोई आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो शायद इकोनॉमिक्स अच्छी होगी। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि कहाँ पर आप ओवरऑल कंफर्टेबल हैं विद द सिलेबस एंड कहाँ कहाँ पे आपको प्रैक्टिस की या गाइडेंस की ज़रूरत ज़्यादा है। तो ये आपको पहले से गेज करके रखना है। सेकेंड एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज सेटिंग योर टाइम लाइन। सो सिंस आई टोल्ड यू कि एग्जाम के आने के बाद तो आपको रफली 30 to 40 डेज मिलते हैं फॉर फेज 1 एंड देयर अबाउट अनदर 30 डेज फॉर फेज 2। सो आपको क्या करना है कि ट्राई टू गो थ्रू द स्टैंडर्ड बुक्स एंड सोर्सेज दैट आई विल बी लिस्टिंग द सबसीक्वेंट वीडियोज एटलीस्ट वंस बिफोर द एग्जाम। एंड ये करना पहले इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आपको पता हो कि जब आप किसी कोचिंग में या कहीं पे भी आउटसोर्स कर रहे हैं तो आप क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं। बिकॉज अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया पहले से है एग्ज़ाम का या फिर बुक्स का या तैयारी का, तो आप ज़्यादा अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे कि कहाँ कहाँ एरियाज में आपको हेल्प की एडिशनली ज़रूरत है, कहाँ कहाँ नहीं है। फोर्थ एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई पर्सनली गो बाय इज फाइंड द राइट मेंटर्स एंड फाइंड द राइट गाइडेंस। Always before you take anybody's advice, please look for their credentials, because जो information overload इतना ज़्यादा है कि people might be giving you wrong advice also, and I wouldn't say wrong advice, but I believe that always try to find the people who have the credentials, who can guide you better, and who have been through the stages themselves, and who have something new to offer. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 15-20 साल का एक्सपीरियंस अगर किसी को है तो वो आपको अच्छे से गाइड ही कर पाए। ज़्यादातर ये होता है कि हम सबकी तरह, बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग इट, वी एंड अप डूइंग द सेम थिंग एंड इट सर्व्स अस नो गुड। सो you have to be very careful about the kind of people that you are engaging with, because a right set of mentors and a right set of peer groups can really do wonders for you, and I have experienced this personally. Then the fifth area is practice. As I said that you have to find your practice, you have to find your strengths and weaknesses. तो जो एरियाज है जहाँ पे आपको लगता है पहले से प्रैक्टिस कर लेनी अच्छी है, प्लीज़ उसको कर लीजिए। फॉर इंस्टेंस, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश ऐसा है कि वो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो आई मेक श्योर दैट आई प्रैक्टिस क्वांट रीजनिंग इंग्लिश इन माई फ्री टाइम। देन अगर कोई इंजीनियर है, उनको बिल्कुल इकोनॉमी की आइडिया नहीं है, तो कोई भी बेसिक इकोनॉमी की बुक पढ़ लीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए ना, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, आरबीआई करता क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ब्लैंक हैं बिफोर यू आर अपीयरिंग फॉर द एग्जाम। तो ये सारी चीज़ें बेसिक कर लीजिए। अगर फाइनेंस में इंटरेस्ट हो, थोड़ी बहुत फाइनेंस की कॉन्सेप्ट्स पढ़ लीजिए, बॉन्ड क्या होता है, डिवेंचर क्या होता है, इक्विटी शेयर क्या होता है।
So these things are certain smaller areas where you can अभी से see and so that जब भी आप syllabus देखें आपको सब कुछ एकदम नया नहीं लगे टॉपिक्स में, एटलीस्ट आपको एक रफ आइडिया सब चीज़ों का हो जाए. So this is the pre-exam or pre-notification preparation that you must be doing and I expect कि आप ये सब अच्छे से करेंगे and please कुछ भी doubts हो please comment कीजिएगा. I will try to answer all of them. So this is the pre-exam preparation that I'm expecting from you guys. Now coming to the next part of the video कि जो आगे की RBI Grade B सीरीज होने वाली है वो किसके लिए बेनिफिशियल है. So I would say that I've told you all about myself, but I will try to give you all the alternatives possible. Whether you are preparing by self-study or doing it on your own, or you're approaching any coaching or you're outsourcing your preparation that ways, whether you're a UPSC aspirant or a non-UPSC aspirant, whether you are a commerce student or a non-commerce student. I will try to give my strategy in such a manner and I will try to make the customization for everybody as much as possible so that सबके लिए useful हो जाए. आप भी अपनी तरफ से ट्राई कीजिएगा कि उसको जो जो एरियाज आपको लग रहे हैं अप्लाई करने के वहाँ पे अपने हिसाब से अप्लाई कर लें. Now the next part is about the series of videos that I'll be coming up with. So मैं आपको एक brief overview दे देती हूँ कि क्या क्या I have in the pipeline, क्या क्या I have planned for the series. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन जो है, क्योंकि काफ़ी फ्रेशर्स ने कमेंट किया था कि उनको समझना है कि एग्जाम का एग्जैक्टली क्या पैटर्न रहता है. दैट आई विल बी डिस्कसिंग. देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस कि व्हेन इज द नोटिफिकेशन ऑफ 2022 एक्सपेक्टेड. नाउ ये ऐसा नहीं होगा कि रैंडम हम गेस कर रहे हैं. इट विल बी बेस्ड ऑन डेटा एंड फैक्ट्स कि पिछले साल के जो भी प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से टाइमलाइन के हिसाब से व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट द नेक्स्ट नोटिफिकेशन आफ्टर द एंड ऑफ द साइकिल. वो सब देख करके एंड वॉट एवर इन्फॉर्मेशन आई हैव वी विल ट्राई टू सी व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट द नोटिफिकेशन 2022. देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी हाउ टू टैकल फेज 1 GE. नाउ जो न्यू पैटर्न आ गया है उसमें काफ़ी डिफरेंस आए हैं GE में एंड पिछली बार तक काफ़ी फैक्चुअल रहती थी बट इस बार आई थिंक काफ़ी ऐसा नहीं था कि 3-4 महीने की GE करके आप कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी उसमें थोड़ी एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत थी. सो वी विल सी हाउ वी कैन टैकल द न्यू पैटर्न ऑफ GE. देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी हाउ टू टैकल फेज 1 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. दिस इज़ वन पर्सनल एरिया वेयर आई स्ट्रगल्ड अ लॉट एंड आई थिंक स्ट्रगल करते करते मैंने फाइंड आउट कर लिए थे काइंड ऑफ सेफ टॉपिक्स जो आते ही आते हैं एंड जो रफली ईजी हैं करने के लिए, ताकि मैं एटलीस्ट कट ऑफ मीट कर पाऊँ, क्योंकि उसमें मेरा गोल यही था कि क्वांट कांट बी माई स्ट्रेंथ एरिया. आई जस्ट हैव टू मीट द कट ऑफ इन क्वांट. सो वी विल डिस्कस क्वांट दैट वे. इन द सिमिलर मैनर वी विल डिस्कस फेज 1 रीजनिंग, द सेफ एंड सिक्योर एरियाज वेयर वी कैन स्कोर. देन वी विल कम टू फेज 1 इंग्लिश. फेज 1 इंग्लिश में थोड़ी मैं जेनेटिक टिप्स ही दे पाऊँगी आपको, क्योंकि वो थोड़ा डाइसी हो जाता है इंग्लिश में. यू कैन नेवर बी श्योर कि क्या आने वाला है, क्या पूछने वाले हैं. So phase 1 English we will discuss. Then we will see important static GA. So static GA क्या है कि I think उस पर इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए. It ends up being a waste of our time. तो उसके जो important areas है क्या क्या cover करना है, we will see some smart memory tricks या कुछ भी जिससे हम उसको याद कर सकें. जो basic चीज़ें आपको याद होनी चाहिए static GA में. So we will focus on all of that. Then in the next video we will see phase 2 objective. Now after the pattern change, स्पेशली बहुत ज़्यादा ओवररेटेड था फेज 2 ऑब्जेक्टिव. अब वो काफ़ी हद तक माइल्ड हो चुका है, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव का उतना वेटेज ही नहीं है जितना पहले हुआ करता था. एंड एज आई ऑलरेडी सेड कि आई ऑलवेज हैड अ डिफिकल्टी प्रिपेयरिंग जब वो इतना ज़्यादा CA इंटेंसिव था, क्योंकि मैं कर ही नहीं सकती थी इतना ज़्यादा PIB, इतना ज़्यादा रोज़ के आर्टिकल्स पढ़ना और उसके फैक्ट्स याद करना. सो वो मुझसे नहीं हो पा रहा था. सो बट इस बार तो काफ़ी ज़्यादा चेंज ही हो गया पैटर्न. सो नाउ इट रिक्वायर्स अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी ऑल टुगेदर. एंड सिमिलरली आई वुड सजेस्ट कि जो आपको पता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, या तो आप उसको आउटसोर्स कर दीजिए अगर कर सकते हैं तो, अगर वो इतना इंपॉर्टेंट है तो, और नहीं है तो फिर प्लीज़ लेट गो ऑफ इट एंड फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ एरियाज. देन नेक्स्ट इज फेज 2 डिस्क्रिप्टिव. नाउ दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वीडियोज. सो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे कि कैसे मेरी डिस्क्रिप्टिव की जो प्रैक्टिस थी उससे मैं आंसर कर पाई क्वेश्चंस को. अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो इस बार जो पैटर्न चेंज से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे दे वर वेरी एनालिटिकल इन नेचर. एंड समहाउ मुझे लग रहा था कि एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बिकॉज अगर पैटर्न चेंज किया तो आज मैंने किसी मोटिव से पैटर्न चेंज किया होगा. सो ऑफकोर्स ओइंग टू माई मेन्स प्रेपरेशन ऑल्सो एंड ऑल द डिस्क्रिप्टिव प्रेपरेशन आई डिड,
आई वॉज रेडी फॉर एनी बाउंसर्स जो भी RBI मतलब भेज सकता है हमारे लिए. So I will be telling you about how I focused on enriching my answers using examples, using conclusions, ready-made introductions, using data figures, and having structuring the answer correctly and making sure that I'm answering each and every point in the answer very correctly. And using simulated practice, I used to literally practice on a keyboard कि कैसे मैं उसको रियल एग्जाम में कर सकती हूँ. सो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं. एंड आई बिलीव कि डिस्क्रिप्टिव पैटर्न से काइंड ऑफ जो एक स्पेक्ट्रम होता है ना एग्जाम्स का, सपोज यहाँ पे बैंकिंग एग्जाम्स है, यहाँ पे यूपीएससी है. सो नाउ आरबीआई विद द चेंज इन पैटर्न हैज स्लोली मूव फ्रॉम दिस एंड टू मोर टुवर्ड्स यूपीएससी. तो अब इतना ज़्यादा फैक्चुअल रह नहीं गया है. They are expecting you to be very analytical in your approach. They are expecting you to understand and answer accordingly. सिर्फ रटी रटाई चीज़ें आप नहीं लिख सकते हैं उसमें. सो आई थिंक इट इज़ अ वेलकम चेंज ऑल्सो, बट आई थिंक उसके लिए हमें एक डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट चाहिए तैयारी के लिए. सो जो पुरानी तैयारी चलती आ रही है वो नहीं चलेगी. ऑल्सो वन मोर थिंग, आई बिलीव जो भी डिस्क्रिप्टिव में एडवांटेज था यूपीएससी एस्पिरेंट्स को वो इस साल मिल चुका है, बिकॉज इस साल एकदम से नोटिफिकेशन चेंज हुआ था एंड लोगों के पास इतना टाइम नहीं था कि वो जल्दी से प्रिपेयर कर पाएँ. बट अब तो हमें पता है नेक्स्ट ईयर के लिए, एंड कि अब हम तैयारी भी कर सकते हैं अच्छे से कि डिस्क्रिप्टिव पैटर्न आ ही चुका है. वी हैव वन एंटायर वी हैव अबाउट 5 to 6 months तो रफली एग्जाम के आने तक. तो अब आई बिलीव एवरीबडी इज एट एन इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड, क्योंकि अब चाहे वो यूपीएससी एस्पिरेंट है चाहे नॉन यूपीएससी एस्पिरेंट है, डिस्क्रिप्टिव की तैयारी तो हर कोई करेगा ही ओइंग टू द पैटर्न चेंज. अगर आप नहीं कर रहे हैं तो वो हमें ठीक करना है, बिकॉज अदरवाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है. बट आई थिंक जो एडवांटेज थी वो अब खत्म हो चुकी है. इस वाले अटेम्प्ट में आई डोंट थिंक कोई एडवांटेज मिलने वाली है यूपीएससी एस्पिरेंट्स को. देन द नेक्स्ट इज वी विल डिस्कस फेज 2 की इंग्लिश स्ट्रैटेजी का रहती है. वेरी नेग्लेक्टेड पेपर इट इज़, बट आई थिंक इस पर अच्छे से फोकस करके हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं. सो इंग्लिश का पेपर वी विल डिस्कस फेज 2 का. देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इज बायोडाटा फिलिंग. सो ना यहाँ पे क्या हुआ था कि पिछले साल तक आरबीआई यूज टू गेट द बायोडाटास फिल्ड आफ्टर फेज 2 डेक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट. तो जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते थे स्टूडेंट सिर्फ वही बायोडाटा भरते थे. बट सरप्राइजिंगली इस बार फेज 2 एग्जामिनेशन से पहले ही बायोडाटा भरवा दिए गए थे सारे कैंडिडेट्स के. सो हुआ क्या था कि ड्यू टू लैक ऑफ टाइम और नेग्लिजेंस a lot of aspirants ended up filling their biodatas poorly. या तो काफ़ी सारे फील्ड्स एम्प्टी छोड़ दिए गए थे या फिर इतने कॉशियसली नहीं भरा गया था. एंड आई नो पर्सनली पीपल हु सफर बिकॉज ऑफ दिस. क्योंकि क्या होता है कि अगर आप एक ब्लैंक बायोडाटा प्रेजेंट कर रहे हैं इंटरव्यूअर्स को, तो आप उनको कुछ भी नहीं ऑफर कर रहे हैं वेयर दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम. So the now the ball is in their court. They can ask you any random thing and you are bound to falter there. You will get trapped in that trap. बट अगर आपने वहीं कुछ ना कुछ लिखा है, अपने अचीवमेंट्स, अपने बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उनको ऑफर करे हैं, सो नाउ दे हैव फॉर्डर मटेरियल वेयर दे विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड ऑन दैट. सो वो सारी चीज़ें वी विल बी डिस्कसिंग हाउ टू फिल द बायोडाटा एंड हाउ टू टेक इट वेरी सीरियसली. And I think the last in the series is going to be how to tackle the final interview. So I think लोगों को ये लगता है कि जो भी बोलते हैं सही बोलते हैं, बस बोलना होता है इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली. ऐसा नहीं होता है. आई बिलीव what you speak is equally important as to how you are speaking it. So your confidence and your content, both of them matter in the interview. How you are tackling the question, how you are breaking it down, everything matters. And I think this equally matters in descriptive also. बहुत लोगों से मैंने सुना था कि कुछ भी लिख के आ जाओ, नंबर तो मिल जाएंगे. सिर्फ यहाँ पेज नहीं भरना है हमें. वी डोंट हैव टू फिल द एंटायर स्क्रीन. दैट इज नॉट आवर एम. द एम इज कि आप उसमें कुछ तो क्वालिटी एनरिचिंग मटेरियल डालेंगे ना एग्जामिनर के पढ़ने के लिए. सो ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिखने से मार्क्स आ जाते हैं. प्लीज़ बिलीव मी दैट. दो आई हैव नॉट गॉटन माई मार्क्स एज येट, आई एम येट टू रिसीव the scorecard from RBI, but I can say it from my experience of UPSC mains and RBI phase 2 कि कुछ भी लिखने से नंबर नहीं आते हैं. You need to have quality content presented on the sheet of paper or on that screen. So उसी के basis पे आपको नंबर मिलेंगे. And similar goes for the interview. So I think that's a rough idea of the videos that I'm going to be doing in the future. If you have any suggestions, please comment in the comment box below. I would love to hear them out. And about the timeline. So मैं कब ये सारी videos plan कर रही हूँ? So basically I'm planning a deadline of about October 10 to 15 for all these videos. But the thing is, it is a little dependent on my UPSC result that I'm awaiting in the next 10-15 days.
So if the result is positive, then I will be able to deliver it on time. In case the result is not positive, I have an upcoming prelims. I'll be appearing for this year's prelims, and then I have to juggle between my prelims and my job, and I just have 2-3 hours left to study for prelims during the day. तो थोड़ा सा डिले हो सकता है वीडियोस में, एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट वेरी रेगुलर विद द वीडियोस आल्सो. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज. एंड इसीलिए शायद हो जाता है मैं कुछ लोगों के कमेंट्स भी मिस कर देती हूँ, एंड बिकॉज आई जस्ट गिव अबाउट 45 to 50 minutes to scroll through all the social media. So but I will try to be more regular in future. And also one more thing, मेरी एडिटिंग शायद इतनी अच्छी नहीं होती है बिकॉज आई डू इट ऑन माई ओन, बट आई प्रॉमिस दैट वट एवर कॉन्टेंट आई एम प्रोवाइडिंग टू यू विल बी क्वालिटी कॉन्टेंट ऑलवेज. So please bear with me on all of these points. And yeah, so that's all for today's video, and I really love to hear from you guys. Please keep sharing your thoughts, and thank you for your support. Please comment, like, share and subscribe, and I'll see you in the next video.